Hello viewers, welcome to ICSE Board Class 10 Chemistry episode 2.6 and we are with chapter Chemical Bonding, Ionic Compounds and Covalent Compounds. So far we have seen about ionic compounds, their property, conditions and examples. We have also seen covalent compounds, we have seen about its formation, we have also talked about polar and non-polar covalent compounds. In this episode we are going to talk about the properties of covalent compounds, as well as we are going to talk about coordinate covalent compounds and its formation. So let us move on to our topic. So in this episode of 2.6 chemical bonding, we are going to talk about the properties of covalent compounds. Now before we go into the covalent compounds, let me write down that there are two forces which are acting in the covalent compounds, and those are: number one, van der Waals forces, that is weak, and number two, hydrogen bonds. Those are strong. Now, these van der Waals forces are basically seen in non-polar covalent compounds, while hydrogen bonds are seen in polar covalent compounds. Here, distribution of electron is what? Equally distributed. And here they are unequally distributed. Another one, if you see here, there is no formation of plus or negative ions, but here there is a possibility of forming slightly delta plus and slightly delta minus ions. These are basically not soluble in water, but these one are basically soluble in water. Understood? So this is about the general things that we require to know before we go into the properties of covalent compounds. Now whenever you are coming across van der Waals forces, that means it is always talking about non-polar compounds, right? So this thing you have to keep in mind. तो यहाँ पे पहला point है physical state. They are generally gaseous, liquids और soft solids. अगर hard solid होता तो वो ionic bonds में चले जाते, लेकिन ये soft solids है, बराबर? जैसे कि as for example fluorine, chlorine, bromine, iodine, gas, liquid and iodine is in soft solid. Reasons: very weak van der Waals forces between the molecules cannot hold at one place. So van der Waals forces are what? Weak. Van der Waals forces are what? Weak. They are weak van der Waals forces, and that's why they are not able to hold at one place. So the bond energy for holding them is very, very small. It cannot hold the molecules at proper place. So they are in gaseous form, or you can say in the liquid form. In case of somewhat bigger molecules, the bond energy increases. So if the bond energy is very less, then they are going to be what? Gas. If it is more than this one, then it is going to be what? It is going to be liquid. So understood this one? पता चला? अगर बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है तो वो आ जाएगा गैस, अगर थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर इंक्रीज हो गया तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, अगर उससे भी थोड़ा ज़्यादा है तो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा. सो लेस, मोर एंड मोर. व्हाट इज दिस? बॉन्ड एनर्जी. This one is what? Gas. This one is what? Liquid. And this one is what? Solid. तो ये ज़रा याद रखना कि भाई
बॉन्ड एनर्जी अगर कम है तो गैस उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो लिक्विड उससे और ज़्यादा है तो सॉलिड। अंडरस्टूड? लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? लो, वापिस वही स्टेटमेंट आएगा, वैन डर वाल फोर्स वीक है, इसलिए वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है वो बहुत इजीली, बहुत थोड़े से में वो ब्रेक हो जाएगा। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो आराम से ब्रेक हो जाएगा। सो क्लोरीन क्लोरीन, दिस बॉन्ड इज होल्ड बाय वैन डर वाल्स van der Waals forces, and the van der Waals forces that holding the chlorine molecule is weak. So very less amount of energy is required to break the molecules between the two chlorine atoms. तो आराम से ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही लेस है। नेक्स्ट वन, सॉल्युबिलिटी। अगर आप सॉल्युबिलिटी देखो तो नॉन पोलर जो है वो इनसॉल्युबल है, मैंने यहाँ पे ही पहले बता दिया। जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो इज नॉट सॉल्युबल, वो इनसॉल्युबल है, लेकिन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स वो सॉल्युबल रहते हैं। तो देखो यहाँ पर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन पोलर कोवेलेंट वाटर, हाउएवर दे डिसॉल्व इन अ नॉन पोलर कोवेलेंट लिक्विड्स सच एज बेंजीन। हाँ, बेंजीन में डिसॉल्व हो जाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व हो जाते हैं। सो ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया आपका कि भाई नॉन पोलर कंपाउंड्स डिसॉल्व है क्या पानी में? नहीं, डिसॉल्व नहीं होता पानी में, तो फिर किस में डिसॉल्व हो सकते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट लिक्विड्स में डिसॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और यहाँ पर सम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, इथाइल अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर। ये जरा याद रखना, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स में पूछते हैं बोर्ड में। So polar covalent compounds are soluble, non-polar covalent compounds are not soluble in water, but they are soluble in non-polar liquids such as benzene, carbon tetrachloride, etc. Let us move on to the next one, conduction of electric current. यहाँ पर non-polar covalent compounds है वो free electrons नहीं बनाते, free ions नहीं बनाते, इसलिए वो non conductor है, बराबर, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, मोल्टन यानी कि फ्यूज, या तो फिर एक्वियस स्टेट के अंदर। तो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते, दे आर द बैड कंडक्टर्स, दे आर नॉट द गुड कंडक्टर्स लाइक द आयोनिक कंपाउंड्स। लेकिन कुछ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है जो पानी में आयोनाइज आराम से हो जाते हैं, दे कैन आयोनाइज इन वाटर एंड दे कैन प्रोड्यूस आयंस सो दैट दे कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, एज फॉर एग्जाम्पल HCl। ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस बनाता है, यानी कि वो आयंस बनाते हैं। अगर वो आयंस बनाता है देन इट इज एन बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट टू पास एन इलेक्ट्रिक करंट। सो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतना याद रखना है आपको। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड्स। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज 1 मार्क क्वेश्चन, या तो फिर 2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चंस यहाँ पे पूछते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोथ आयोनिक कंपाउंड्स एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हमने ऑलरेडी आयोनिक कंपाउंड में देख लिया है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लार्ज है तो फिर वहां पर एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और वो आयोनिक कंपाउंड बनाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम्स, कंबाइनिंग एटम्स देखो तो वो बहुत कम है, छोटी है, स्मॉल है, लेस है, इसलिए एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो इसलिए वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है तो आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, शेयरिंग पॉसिबल है, तो फिर वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर, अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो पोटेंशियल है उसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैपेसिटी है अगर वो हायर है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आराम से बन जाएगा, नेगेटिव आयंस बन जाएगा।
आराम से, इजी फॉर्मेशन। और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर ज़्यादा है, अगर मोर है, तो वो डेफिनेटली आयोनिक कंपाउंड बनाता है। तो अगर मुझे लिखना है इनके बारे में, आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में लिखना है, तो मैं यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बताया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर, तो एक्चुअल ट्रांसफर होता है, बराबर, और वो आयोनिक कंपाउंड बनाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, यहाँ पे शेयरिंग होता है और वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। यहाँ पर अगर मैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिखूँ, बराबर, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से अगर वो ज़्यादा है तो वो कैश आयंस एंड एन आयंस बनाता है, इजीली बनाता है एन आयंस, बराबर। अगर वो एन आयंस बनाता है तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा आईपी वो ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा होगा तो वो आयोनिक कंपाउंड बनाएगा, और यहाँ पर उसका ऑपोजिट है, यहाँ पर आएगा लेस, वेरी स्मॉल, तो वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। समझ में आया? सेम थिंग विद द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ, या तो फिर आप नॉन मेटालिक मेटालिक कैरेक्टर बताओ, वो सब सेम ही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर देखो, हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, करेक्ट, द हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, आयोनिक। सो अगर मैं वापस लिखना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पर, बराबर, आयोनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स, तीसरा पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ज़्यादा है तो आयोनिक कंपाउंड बना रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी लेस है तो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। मेटालिक और नॉन मेटालिक के लिए, बराबर, अगर मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है तो आयोनिक कंपाउंड बना रहा है, अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है तो वो कोवैलेंट कंपाउंड्स बना रहा है। So it has been noticed that among the two chemically reacting atoms, if one is the metal and another is a non-metal, then it is going to form an ionic compound in nature. But if both the atoms are non-metallic, अगर दोनों non-metallic है, then it is going to form covalent compounds. I hope you understood these conditions for the formation of ionic compounds and covalent compounds. Let us move on to the next part of the chapter. And that part is coordinate bond. A coordinate bond is a type of covalent bond. So it is a type of covalent bond where both the electrons that form the bond originate from the same atom. यानी कि वो जो बॉन्ड बनने वाला है इलेक्ट्रॉन से, वो इलेक्ट्रॉन वो एक ही एटम में से आने वाला है, दूसरे एटम में से नहीं आएगा। यानी कि दूसरा विदाउट एटम आया, दूसरा का एटम शेयर किया और अपने आप को स्टेबिलिटी सेटिस्फाई करवा दिया। समझ में आया? मान लो कि भाई एक X नाम का कंपाउंड है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरा यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो सेटिस्फाई हो गया इसके साथ, ये भी सेटिस्फाई हो गया इसके साथ, लेकिन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हुए हैं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हुए हैं। सो दैट मीन्स व्हाट, ये जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी के साथ Y नाम के जो एटम है उसके साथ वो शेयर करके वो बॉन्ड बना सकता है। Y के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है उसने, तो Y ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आप को सेटिस्फाई करवा सकता है। समझ में आया? फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर X और H लिए तो आपको शायद नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जो दिया हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वन ऑफ द 2 एटम्स। तो 2 एटम मैंने बताया था, यहाँ पे X और हाइड्रोजन बताया था, यहाँ पे X और Y बताया था। मस्ट हैव एटलीस्ट 1 लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब अकेला एक पैर ऐसे पड़ा रहता है,
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एग्जाम्पल अमोनिया एंड वाटर। अगर आपको याद है तो पता चलना चाहिए कि भाई अमोनिया एंड वाटर दोनों वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में आते हैं। अमोनिया एंड वाटर बोथ ऑफ देम आर कमिंग इन अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, दैट मीन्स दे कैन इजीली फॉर्म डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस, इतना याद रखना। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम दैट इज नॉट शेयर्ड, जो पेयर शेयर नहीं कर सकते विद एनी अदर एटम इज नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन बॉन्डिंग पेयर, वो तो पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पड़ी रहती है ना, वो थोड़ी शेयर करने वाले हैं, वो तो शेयर करने वाले ही नहीं है ना, समझ में आया? वो तो ऐसे ही पड़ी रहती है तो वो शेयर नहीं करेगी। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं नाइट्रोजन में बता रहा हूँ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर आप देखो, बराबर, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2,5, बराबर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता रहा है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम किस तरह से लिखेंगे उसको 5 इलेक्ट्रॉन्स? तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिए, बराबर, और एक यहाँ पे लिखा, एक यहाँ पे लिखा, एक यहाँ पे लिखा। तो ये हाइड्रोजन के साथ गया, ये हाइड्रोजन के साथ गया, ये हाइड्रोजन के साथ गया, बराबर। तो उसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों बाकी रहे ना, तो ये पेयर कौन सी पेयर हो गई? लोन पेयर हो गई। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, देखो यहाँ पर फिर से नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2,5, 5 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो उसका मतलब ये हुआ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं जो मैंने पहले वो डॉट डायग्राम में किया था, 1, 2 और 3, बराबर। तो ये एक हाइड्रोजन लेगा, ये दूसरा हाइड्रोजन लेगा और एक तीसरा हाइड्रोजन लेगा। तो आप देखो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के इसके साथ तो बॉन्डिंग बना दिया, नॉट अ प्रॉब्लम। इसने इसके साथ बॉन्डिंग बना दिया, नॉट अ प्रॉब्लम। इसने इसके साथ बॉन्डिंग बना दिया, नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पर ये सबके हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्डिंग बना दिया। अभी इसका पेयर शेयर हो गया, ये सब पेयर शेयर हो गया। अभी कौन सा बाकी रहा? दिस वन इज रिमेनिंग। तो ये जो पेयर है इसे कहते हैं लोन पेयर, अकेला बेचारा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, और हम इसे कहते हैं नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो ये जो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे किसी के लिए काम में आ सकता है, और अगर वो काम में आ गया और बॉन्ड बना दिया तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई होप यू अंडरस्टूड। फिर से मैं बता देता हूँ, देखो अभी अच्छी तरह से ड्रॉ करके, बराबर, तो हमें पता चल जाएगा। फिर हम वाटर के लिए भी इस तरह से करेंगे, वाटर के लिए। तो यहाँ पे देखो आप आराम से, नाइट्रोजन 1, 2 और यहाँ पर, और यहाँ पे 2, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर वाले हैं, बाहर के शेल के, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है। तो हाइड्रोजन आया, आई एम चेंजिंग द कलर सो इट बिकम्स इजी फॉर यू। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसका आएगा? नाइट्रोजन का उसने एक्सेप्ट कर लिया, नाइट्रोजन का उसने एक्सेप्ट कर लिया, नाइट्रोजन का उसने एक्सेप्ट कर दिया। और नाइट्रोजन क्या करता है? ये जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके शेयरिंग करवा देता है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना, यहाँ पर बॉन्ड बना, यहाँ पर बॉन्ड बना। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 1 पेयर, पेयर का मतलब 2 में ही होता है ना, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अकेला पड़ गया, अलोन है। लोन पेयर कहते हैं। लोन और अलोन दोनों सेम ही रहता है, दोनों का मीनिंग सेम। लोन पेयर बोलो या अलोन पेयर बोलो, तो लोन पेयर है, अकेला रहता है। तो अगर किसी को काम में, अगर वो लोन पेयर आती है, मान लो कि भाई एक्स को काम में आ गया और एस ने उसका शेयर कर लिया और वहां पे जो बॉन्ड बना रहा है, तो उस बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप I made it very clear. Understood? Let us go to the formation of
लोन पेयर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स, बराबर। नाइट्रोजन के जो कॉन्फ़िगरेशन कितना है, तो क्या 2,5, हाइड्रोजन के कितना है 1, तो यू कैन सी हियर उसने XX दिया है हाइड्रोजन के लिए इन ऑर्डर टू डिफरेंस बिटवीन द डॉट एंड द एक्स, अदरवाइज पता नहीं था, मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया, उन लोग ने एक्स और डॉट ले लिया, समझ में आया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये लोन पेयर हो गया, तो ये लोन पेयर किसी और के साथ शेयर कर सकता है। और अमोनिया एंड वाटर बोथ ऑफ देम आर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ, अगेन आई एम शोइंग इट to you. Both of them are polar covalent compounds, that means they have an ability for forming delta plus and delta minus. हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नाइट्रोजन के पास अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखो तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7, तो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इज ड्रैग टूवर्ड्स नाइट्रोजन एंड इट इज बिकमिंग स्लाइटली पॉजिटिव, जस्ट लाइक HCl में, जैसे हम HCl में देखा था, उसी तरह से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में के बीच में भी ऐसा होगा। अगर ये ड्रैग हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर जा रहा है, इसलिए नाइट्रोजन नेगेटिव में चला जाएगा, डेल्टा माइनस में चला जाएगा। इन द पोलर कोवेलेंट अमोनिया मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन हैज 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज नॉट शेयर, तो ये शेयर नहीं हुआ बाय एनी अदर एटम, कोई भी शेयर नहीं कर सकता। तो ये जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है around an atom in the middle of a molecule of a polar covalent compound, देखा आपने polar covalent compound is known as lone pair of electrons, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, बराबर। अभी वाटर का एग्जांपल लिया उसने, वाटर हाइड्रोजन में कितना है 1, ऑक्सीजन में कितना है 8, तो यहाँ पे 2,6, तो अभी ऑक्सीजन के लिए किस तरह से लिखेंगे, तो ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे हाइड्रोजन को यहाँ पे 1, बराबर, यहाँ पे 2, बराबर, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग करेगा, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग करेगा, तो अभी लोन पेयर कितनी हुई, बाकी रही, एक ये पेयर बाकी रही और एक ये पेयर बाकी रही। सो हाउ मेनी आर देयर, 2, सो 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विच आर नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर एटम, दैट इज नोन एज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द एटम विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज डोनर। तो ऑक्सीजन, इसे यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर है, वहां पर नाइट्रोजन डोनर है, क्योंकि वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है ना। लोन पेयर किसने प्रोवाइड किया, यहाँ पर नाइट्रोजन ने, यहाँ पे किसने प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन ने, तो उसे कहते हैं डोनर। द एटम और आयन विच शेयर्स द डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉट इलेक्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर, जो उसको एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं एक्सेप्टर, और वहां पे जो बॉन्ड बन रहा है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया, इजी है। So let us move on to the next one. A bond formed between an ion and the atom of a polar covalent compound having one or more lone pair of electrons such that the ion accept the lone pair of that atom is known as coordinate covalent bond, or you can say dative bond. याद रखना dative bond. Dative bond के बारे में वो लोग 1 मार्क में पूछते हैं. They are asking this question in a 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अमोनियम आयन में देखो आप, अमोनिया के पास लोन पेयर है, हाँ है, कितना लोन पेयर है, अमोनिया के पास नाइट्रोजन के अंदर 1 लोन पेयर है। उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आयन, तो ये आयन वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एटम, किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के एटम के पास 1 लोन पेयर है, हाँ है, वो किसके साथ शेयर करवा रहा है, आयन, कौन सा आयन के साथ, H+ आयन के साथ। तो H+ आयंस ने वो पेयर को शेयर कर लिया, तो हाइड्रोजन जो बन रहा है वहां पर उसने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और हाइड्रोजन वहां चला गया तो वो प्लस हो जाएगा। समझ में आया, तो क्या बन गया, अमोनियम आयन। सो अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास लोन पेयर है, वो आयन के साथ शेयर करवा रहा है। सो आयन में कौन सा है यहाँ पर, हाइड्रोजन आयन, दैट इज प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, जिसका इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल H, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, तो यहाँ पे जो 1 प्रोटॉन है वो बढ़ जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन प्लस हो गया, तो ये पॉजिटिव प्रोटॉन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास दूसरा कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रोटॉन ही है।
तो हाइड्रोजन प्रोटॉन या तो फिर हाइड्रोजन आयन, उसको अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक तो बेचारे ने लॉस्ट कर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टेबिलिटी अटेन हो जाएगी। तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। तो फिर वो नाइट्रोजन के या अमोनिया के पास जा रहा है, तो अमोनिया के पास नाइट्रोजन के पास जो एटम है, नाइट्रोजन एटम है, उसके पास 1 लोन पेयर पड़ा है। तो हाइड्रोजन वो लोन पेयर को अपने शेयर करके, अपने आप नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो शेयर करके अपने आप को स्टेबिलिटी में अटेन कर देता है। तो इसके अंदर एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। तो प्रोटॉन बढ़ गया क्योंकि हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन अंदर ऐड हुआ और हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया नाइट्रोजन के, इसलिए वहां पर पूरे कंपाउंड के अंदर एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, इसलिए अमोनियम आयन पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? और जहां पर एरो दिखा रहा है वो है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम में आपने सब कुछ किया, लेकिन आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एरो नहीं ड्रॉ किया, तो आपका पूरा आंसर गलत, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको एरो बताना जरूरी है, बच्चे ये सब मिस्टेक करते हैं। अंडरस्टूड? प्लीज डू नॉट मेक सच टाइप ऑफ मिस्टेक। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। So in the molecule of a polar covalent compound of ammonia, nitrogen contains a lone pair, a single lone pair, which is accepted by a hydrogen ion to satisfy the stability of a noble gas helium and add 1 more protons in the whole compound, becoming the ammonium ion. So it becomes single positive charge. Okay. Let us go to the hydronium ion, formation of hydronium ion. यहाँ पे आप ऑक्सीजन में देखो तो ऑक्सीजन के अंदर आप देखोगे तो 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, बराबर। उसमें से एक को रहने दो, एक हाइड्रोजन आयन था, उसने एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है या तो शेयर कर लेता है, बराबर। और हाइड्रोजन का खुद का प्रोटॉन अंदर ऐड हो गया, तो फिर प्रोटॉन बढ़ गया पूरे कंपाउंड के अंदर, तो वो प्लस हो गया, इसलिए वो हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बॉन्ड बताना है एरो करके, सो दैट शोज व्हाट? दैट शोज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अंडरस्टूड? इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड वाटर, ऑक्सीजन कंटेन्स 2 लोन पेयर. 1 lone pair of the electrons from the oxygen atom is accepted by H plus ions, or you can say proton of the proton, in order to obtain stability nearest to the helium gas. So as the hydronium ion is having 1 proton which is added into the whole compound, so it becomes 1 more proton more positive ion, so it is single positive charge. I hope you understood this one. ये एग्जामिनेशन में ये सब आता है, so please be careful, watch these videos 2 to 3 times to understand everything carefully. The last one is formation of hydroxyl ion. If one water molecule loses one of its hydrogen atom, अगर उसने एक हाइड्रोजन एटम लॉस कर दिया, it forms hydroxyl ion. तो यहाँ पर लोन पेयर ये हाइड्रोक्सिल ये आयन H प्लस आयन चला गया, अंडरस्टूड? वो ऐसे ही चला गया, अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ के चला गया, वो इलेक्ट्रॉन को लेके नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के चला गया, तो चला जाएगा तो H प्लस चला गया, ये H प्लस चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन तो इधर ही है, सो हियर इट इज देयर, सी यू कैन सी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, प्रोटॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, दैट्स व्हाई इट इज माइनस, सो इट इज हाइड्रोक्सिल आयन माइनस and hydrogen ion is formed H plus. So I hope you understood this also. Let us move on to the next part, the last part of the chapter, that is difference between electrovalent and covalent compounds. यहाँ पर electrovalents, they are not true molecules, but they are aggregate of positive and negative ions. These are true molecules. They are usually crystalline in solids. They are found in gas, liquid and soft solids. They are having high melting point and boiling point. They are having low melting point and boiling point. They are insoluble in organic solvents. They are usually soluble in organic solvents. They are soluble in water. They are insoluble in water, except certain polar covalent compounds, like HCl. Their aqueous solutions are the good conductors of electricity, and they conduct electricity in the molten state. They are bad conductor electricity in aqueous and solution and fused, except polar covalent compounds like HCl.
बराबर, यहाँ पर भी HCl, बस ये एक्सेप्शनल केस है पोलर कोवेलेंट के लिए, बाकी नॉर्मल जनरल देखोगे तो इनसॉल्युबल एंड बैड कंडक्टर आता है. So this is all about our chapter number 2. I hope you enjoyed it. एक्सप्लेनेशन पता चला होगा आपको. अगर कोई डाउट या डिफिकल्टी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, और जस्ट अदर इफ यू फाइंड वेरी इजी एंड वेरी नाइस देन जस्ट गिव अ थम्स अप. Thanks very much guys, and I'll see you in the next episode.